Hello students, welcome back again in this chapter, social institutions, continuity and change. Now today we will talk about the features of casteism. In the last video and last discussion we have discussed about something about casteism, and especially what was the role of caste and its features in the ancient India and ancient time. But today means in this video we will especially discuss about the features of casteism. So the first feature of casteism is that it is ascribed status. Casteism is decided nowadays and in the current time by birth. A child who is taking birth in a particular family, then his caste will be decided according to his family, and in the future he cannot change his caste. So caste is decided by birth, it is by birth. And the next is it is a permanent system, means the opportunity to change your caste, it is not applicable and not accepted by the government, or not given opportunity by the government. It is permanent. So in the current time caste is decided by birth, and it is a permanent system. Nobody can change his caste during his life, because there are some governmental and some legal rules by which the persons can change his caste, and he can take or gain the profits of any caste or particular the reservation benefits. So the government has banned it, and socially it is also not acceptable that anybody can change his caste. The religion can be changed, anybody can change his religion himself according to his will, but caste cannot be changed. Now the next feature of casteism is it is a hierarchical. Caste is hierarchical, means for a long time period, means hundreds of years ago, the families have their caste, and they were prescribed and defined their caste, and from that time to till this time up to nowadays, these castes are continuously running according to hierarchical. Means our father and our forefather were the caste belong to that caste, same caste will be transferred to the next generation. So now caste is prescribed at the hierarchical system, and anybody's or any newly born child will get the caste title according to his father. Now next feature of casteism and caste system is that is very common and essential and also very familiar, that endogamous marriage. Endogamous marriage is another feature. According to this system, the girl or boy or the people or person who is eligible for marriage, he can married only with the person, means next opposite male or female who is belong to the same caste. Means marriage within caste, it is acceptable by the society and by the other citizens of the any particular caste. And this system, the marriage within the caste, it is called the endogamous marriage. So it is also very essential, and but it is not legal. I want to tell you that according to the constitution and according to the
legal laws, IPCs, the intercaste marriage or the interreligious marriage, these are permitted according to court. Anybody can marry with the opposite person whose caste is not similar or whose religion is not similar. But social norms and social acceptance uh, give the preference to the marriage within the caste, means endogamous. Now next feature that is also important, but it is not legal according to Indian Constitution and Indian Penal Code, IPCs, means law and order. It is not applicable and not legal, but within the caste and within the communities it is running and acceptable that the communal about a communal approach or the concept of communalism. Communalism means to taking the favor of his or own caste or his or own peoples who belong to your caste. अपनी जाति के या अपनी जाति की विचारधारा का फेवर करना, उसको बढ़ाना, उसको प्रचारित प्रसारित करना, उसको बढ़ावा देना, लेकिन दूसरी जाति या दूसरी कास्ट के विचारधारा को और उनके क्रियाकलापों को निचला दिखाना, नीचे दिखाना, ये जो एक्टिविटी है, ये जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। इसको सांप्रदायिकता भी कहते हैं। तो जातियों के बीच में भी, जैसे धर्मों के बीच में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसमें एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार पनिशेबल है, ये एक क्राइम है। आप किसी जाति या धर्म विषयक टिप्पणी करके किसी जाति या धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते, उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकते, ये पनिशेबल है, क्राइम है। लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि भीतर ही भीतर जातियों के बीच में ये कम्युनल सिस्टम कि हम दूसरी जातियों से बेहतर हैं, ऊंचे हैं, ये सिस्टम चल रहा है। इसको सांप्रदायिकता के तौर पर या जाति सांप्रदायिकता भी कह सकते हैं। कभी इसी को जातिवाद का जो विकृत रूप है, जातिवाद का जो नेगेटिव फॉर्म है, वो भी इसी को आप मान सकते हैं। नेक्स्ट फीचर of casteism that is also important, and it is segmental divisions of caste. It is also have been seen in the ancient and for thousands of years history in India that many castes has been divided into some subcastes, and this process is continuing, it is running, and sometimes it is also seeing looking that some castes are dividing into some subcaste. बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो धीरे धीरे चल करके अनेक उप जातियों में विभाजित हो गई। जातियों में भी जातियां बट गई, बन गई, उनको उप जाति या सब कास्ट कहते हैं। और ये प्रोसेस भी चलता रहता है। जब कभी एक विशेष ग्रुप या समुदाय के लोग जिनके आचार विचार या कुछ चीज़ें अपनी मूल जाति से कुछ अलग हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नई जाति फॉर्म कर लेते हैं, नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है कि उप जातियों का निर्माण भी इसी जाति सिस्टम का, कास्टिज्म का एक प्रोसीजर है जो इतना फास्ट नहीं है, स्लो है, लेकिन चलता रहता है। उप जातियों का निर्माण होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट। जातियों का जो व्यवसाय और उनका जीविकोपार्जन का साधन है, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई एंशियंट टाइम पीरियड में, पुराने समय में, ये ऑब्वियसली एक तरीके से मैंडेटरी था और थोड़ा सा सम्मान की बात भी होती थी जातियों के लिए कि
उस जाति के द्वारा, उस जाति के लिए जो कार्य, जो प्रोफेशन निर्धारित किया गया है, वो उसी को करेगा। दूसरे काम को करने का मतलब है कि वो अपने जाति से च्युत हो रहा है, उससे अपोजिट जा रहा है, या उसका मान सम्मान कम हो रहा है, या ये भी कह सकते थे कभी कभी कि वो स्वधर्म का पालन, स्वजाति का पालन नहीं कर रहा है। वैदिक केस में आपको पता है ब्राह्मणों का काम पठन पाठन, शास्त्र अध्ययन, क्षत्रियों का काम राजकाज और सैन्य सहायता देना। वैसे जो कैटेगरी के लोग थे ये वाणिज्य व्यापार, शूद्र समुदाय के लोग जो थे ये अपर, जो ऊपर की जो भी जाति ये वर्ण हैं उनकी सेवा करना ये था। लेकिन प्राचीन इतिहास में भी ऐसे कई प्रमाण, एविडेंस मिलते हैं जहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग भी वाणिज्य व्यवसाय में लिप्त पाए गए हैं या एग्रीकल्चर भी करते रहे हैं। ऐसा रामायण महाभारत में भी उल्लेख तमाम जगह पर मिलता है। और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो निम्न जातियों के लोग उच्च दर्जे के काम और पुरोहिती का काम भी करते रहे हैं। वो विद्वान भी हुए, शास्त्रज्ञ भी हुए हैं, राजा भी बने हुए हैं। तो सभी जातियों का या सभी वर्णों का इसमें आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो जो राजा महाराजा पहले हुए हैं, किंग्स हुए हैं, उन सभी वर्णों से लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय राजकुमार ही राजा बने हैं। तमाम राजा ऐसे हुए हैं जो अन्य वर्णों से भी आते हैं, वो ब्राह्मण से भी हो सकते हैं, और शूद्र जो कैटेगरी थी उससे भी बहुत से राजा हुए हैं। तो इसके अपोजिट और कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल भी मिलते हैं। इसमें विरोधाभास भी है और अपवाद भी है। हाँ, लेकिन एक सर्वमान्यता ये होती थी कि जाति विशेष को अपने ही व्यवसाय को करना चाहिए। और अगर करंट टाइम पीरियड में बात करेंगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आज के टाइम में जाति के आधार पर तो एप्लीकेबल नहीं है। अब आप किसी भी सेक्टर में देखिए, आपको हर जाति समुदाय के और हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो अभी इसका इतना कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है जातियों के बीच में कि आप जिस जाति समुदाय के हैं उसी का ऑक्यूपेशन करेंगे। लेकिन फिर भी कई मामलों में देखा जाता है, जैसे मान लीजिए लुहार है तो माना जाता है कि उनका जो मूल काम है, उनके जाति का जो एक स्वाभाविक काम है वो हथियार औजार बनाना, ठीक। और जो मान लीजिए बढ़ई है तो उनका काम कास्टगिरी का, कास्ट कला का है। तो ऐसे बहुत सी जातियां हैं जो पर्टिकुलर वो अपने व्यवसाय के तौर पर जाने जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में अभी इतना प्रासंगिक नहीं है। आज तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भारतीय संविधान भी सबको बराबरी का दर्जा देता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी लीगल व्यवसाय को कर सकता है, वो किसी भी जाति या धर्म का हो। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी इसका कास्टिज़म में रोल रहा है। एक का लास्ट फीचर और हम बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी शुरुआती दौर में भी नहीं थी और आज के टाइम पीरियड में भी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग आप जाति परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दूसरी जातियों का नुकसान होने का डर रहता है। इसीलिए ये बाई बर्थ ही है। और सोशल मोबिलिटी मतलब जो एक समाज से, एक जाति से दूसरी जाति में ट्रांसफ़र होना या दूसरे उसमें कन्वर्ट होना जाति में, ये परमिटेड नहीं था पहले भी। और इसको कभी कभी जाति विरुद्ध माना जाता था, समाज विरुद्ध माना जाता था, अधर्म इसको माना जाता था। और आज के दौर में तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही ऐसा है, आपकी जाति बाई बर्थ ही डिसाइड हो जाती है। तो लेकिन फिर भी इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हैं उनसे आपको देखने में आ रहा है कि जो न्यू जनरेशन आती है, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको टाइटल देने में, उनको अपनी जाति का चुनाव करने में ये पूरी फ्रीडम है। वो चाहे तो अपनी माता की जाति टाइटल को लगा सकते हैं या पिता की जाति टाइटल को लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सोशल मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा परमिटेड नहीं है।
जाति समूह के अंदर अपनी ही जात में विवाह और जितने भी कार्यक्रम है संपन्न करना वो समाज के जातियों के हिसाब से ज़्यादा उचित माना जाता है, और जाति के जो लोग होते हैं उसके लिए दबाव भी बनाते हैं। तो ये तो कास्टिज़म के कुछ फीचर हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक हैं जिन पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।